today is the main task that we usually start with our other interns that we have for content creation. हमने अभी तक 4 batches of interns we have dealt with, और उन सब से whatever you have learned till now is something we usually expect them to know already. उनके interview procedure में ही हम we select those people who are already well off with the stuff you have learned till now. What we are going to do today is something that we train them in, and then finally we publish and produce the content that you see on our social media handles. So today is a big step, a big leap forward. ठीक है? If you can just carry a notebook and a pen with you, because today आज बहुत सारी चीजें डिस्कस ऐसी होंगी जो कंसेप्चुअल हैं, जिनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा you would need to keep track of the things that we are discussing, and finally we want you to apply them and make your submissions today accordingly. ठीक है? चलो perfect. So let us begin with this session. Harjot, recording start हो गई है? हाँ। Perfect. चलो, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट आज का क्या है। तो डे 5 का टास्क है वीडियो एडिटिंग एडवांस्ड। ठीक है, ये फाइनल स्टेज है हमारी वीडियो एडिटिंग की जो ट्राइफेक्टा सीरीज थी। हमने पहले बेसिक करा, फिर इंटरमीडिएट लेकर गए उसे, कल हमने जेएल कट की बात करी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम फाइनल स्टेज पर आ रहे हैं वीडियो एडिटिंग में, जिसमें हम खुद की सेल्फ शॉर्ट वीडियोस को एडिट कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि आज हम ट्रिपल जो है टास्क के बारे में बात करेंगे। एक ही टास्क में 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप, जो एक्चुअल में आपकी रील क्रिएशन के पार्ट्स होते हैं। तो वो 3 स्टेप्स कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले वील डिस्कस स्क्रिप्टिंग। ठीक है, स्क्रिप्टिंग इज द कंसीविंग ऑफ द इनिशियल आइडिया, कि आपको क्या फाइनल रील में चाहिए। उस आइडिया को जब आप स्क्रिप्ट करते हैं तो दैट इज द स्क्रिप्टिंग पोर्शन। सेकेंड पार्ट, the shooting, जिसमें you capture the video clips yourself, you capture yourself and the clips you want to layer in your video. And finally the third stage is the editing. ठीक है, और editing is something that since you have been doing it for a couple of days, we hope that you are familiar with the tools, you will be able to use them more smoothly and quickly now. ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस कर रहे होंगे तीनों चीजें। Until now we have focused on just editing. Okay, today we move to the actual content creation itself. uh, Again, the idea is that the whole video, it begins in your brain, right? आपको पता होना चाहिए आप क्या बना रहे हो, कौन सी ऑडियंस के लिए बना रहे हो, और फिर आपको ये 3 स्टेप्स करने हैं ताकि आपका फाइनल प्रोडक्ट एक प्रोफेशनली रेडी हो पाए। सबसे पहले तो शुरू करते हैं हम, जो हमारा टास्क है स्क्रिप्टिंग से। ठीक है, तो हैरी लेट अस, आर वी रेडी? परफेक्ट। So let me take a small trivia first. ठीक है, Samiksha and Kuer. Uh, you guys tell me, what kind of content do you consume the most? ठीक है, एक एक करके लेते हैं। Samiksha, are you there? Yes, sir. Yes. What kind of content do you consume the most? Sir, it is not like a particular content I consume. Uh, it just depends on my Instagram feed. All right, so you scroll Instagram. Yeah. All right. Apart from that, like, do you have any specific interest? Some movie that you like, some book that you've read, anything? Uh, yes, I have many movies. Now, though I don't see because this is my 12th class, but yes, before that I've seen a lot, and Do you also have any favorite one in mind? favorite one. Not right now. I can't think of anything. There are All many right. actually. So we'll circle back to you, all right? Meanwhile, you think about this. So Kuer, yes, do you have anything in mind that some particular form of content that you like watching? Sir, I'm quite interested in cricket matches and English movies type. Cricket matches, English, all right. And So you must be a fan of some sports person, right? Who is your favorite cricketer? Virat Kohli, sir. Plus one.
ठीक है, विराट कोहली इज समवन जिनकी रील्स वगैरह यू वुड लाइक टू वॉच, राइट? So it would be Yes, something you would like to create as well, right? yes, sir. Noted. Let's see. Move on to Gurmukh. Hi, Gurmukh. How are you doing? Hello, sir. Fine, sir. So, yeah, Gurmukh, you tell us what kind of content do you consume the most? What's your favorite type of content to watch? Uh, I say recently I started watching content like lifestyles, something consistent All right. songs, मतलब ऐसा कुछ जैसे जिम जाना और खेलना सुबह, वर्कआउट्स एंड ऑल दैट. All right. That's very interesting. Now, you tell us what kind of a content would you like to create? Suppose today's task is essentially you have to shoot a video of yourself and then create a montage out of it. एज जैसे मैं अब इंस्टा अकाउंट अपना रन कर रहा हूँ ओजी गुरमुख से, तो उसमें मैं ऐसा कुछ ही पोस्ट कर रहा हूँ. यू कैन चेक ओवर Lifestyle पे. देयर. All right. हाँ. So we'll give you a task according to that. Samiksha, do you have anything in mind now? अभी तो नहीं There's है. a favorite movie. I mean, it's a drama. It's Twinkling Watermelon, and I think I also enjoy variety shows a lot. All right, noted. Perfect. चलो, we have different uh, interests on board. ठीक है, चलो, we'll give you a broad idea आज आपको क्या करना है. So you have to choose one topic, one theme. ठीक है, उसमें आपको किसी एक स्पेसिफिक जो है टाइटल को चूज करना है. ठीक है, सपोज मूवीज इज योर थिंग ऑफ इंटरेस्ट, सो यू हैव टू चूज वन मूवी दैट यू वांट टू क्रिएट कंटेंट ऑन. वील मूव ऑन. जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी एक टाइटल को हमें चूज करना है. सपोज आप अगर मूवीज आपका इंटरेस्ट है, राइट, तो आपको किसी एक मूवी को चूज करना है जो आपकी फेवरेट है और उसके ऊपर आज की रील बनानी है. अगर सपोज आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो किसी एक क्रिकेटर के ऊपर, जैसे विराट कोहली अगर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो आपको एक टाइटल ऐसे ऐसे चूज करना है जो भी आपका टॉपिक या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके ऊपर आपको एक क्लिप बनानी है 60 to 90 सेकेंड्स की. दैट इज योर होमवर्क अल्टीमेटली. अब उस क्लिप में जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको देखना है. सबसे पहले तो आपको उसकी एक यूनिक स्क्रिप्ट तैयार करनी है. ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव ना हो केवल. ये डिफरेंस भी बड़ा जरूरी है. डिस्क्रिप्टिव चीजें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है जितनी स्टोरी टेलिंग होती है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं विराट कोहली पे रील बना रहा हूँ तो बजाय कि ये बताने की कि वो काम कब कहाँ पैदा हुए, फिर बाद में कौन सी डेट को क्या किया, कौन सी डेट को क्या किया, ये बताने में उतना शायद इंटरेस्टिंग क्लिप ना बने, राइट? ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लिप क्या होगी अगर मैं उसे स्टोरी टेलिंग वे में शुरू करूँ कि एक ऐसा लड़का है जिसने दिल्ली से उठ के जो है दुनिया की सबसे बड़ा क्रिकेटर बना, ये एवरेज स्ट्राइक रेट ये है वो है. मतलब एक और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं हम किसी की डिस्क्रिप्शन को, भले ही वो एक किसी मूवी की बात हो, भले वो किसी मूवी के किसी एक कैरेक्टर की बात हो, राइट? तो स्क्रिप्ट में सारा जो है चीज शुरू होती है हमारी वीडियो की. जो कहानी है कि वो कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा, ये स्क्रिप्टिंग फेज में ही कुछ 80-90% डिसाइड हो जाता है. तो एज अ कंटेंट क्रिएटर जो आपका पहला स्टेप आज रहेगा, पहले आपको कोई टाइटल चूज करना है. ठीक है, टाइटल, और उसमें भी जितना पर्टिकुलर आप जा पाओ. जैसे कि विराट कोहली एक व्यक्ति है, तो विराट कोहली के ऊपर आपको बना. ठीक है, या कोई मूवी है, मूवी में भी किसी एक कैरेक्टर के ऊपर अगर आपको वीडियो बनानी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो स्क्रिप्टिंग उसकी शुरू करेंगे. ठीक है, तो हैरी कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन. ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग में हम एड लेंगे हमारे जनरेटिव एआई की. ठीक है, तो आज हम आपको पहली चीज सिखा रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग, हाउ टू जनरेट गुड स्क्रिप्ट्स, स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट्स वाया चैट जीपीटी लाइक प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, तो हम आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करके विल शो यू. ठीक है, चैट जीपीटी सबने यूज करा है? एक बार थम्स अप भेज दो इफ यू आर अवेयर ऑफ द इंटरफेस ऑफ चैट जीपीटी. ठीक है, समीक्षा, गुरमुख ने नहीं करा है. ओके, कुंवर, हैव यू? अच्छा, गुरमुख ने भी करा है. कुंवर, हैव यू यूज्ड चैट जीपीटी? कुंवर, आर यू देयर? हेलो, मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना? Yes, sir.
Yes, sir. तो कुंवर, हैव यू यूज्ड चैट जीपीटी पहले? Yes, sir. परफेक्ट। तो आपको आइडिया है ही, है ना, सबको ही होगा आई गेस, जो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहे हैं। अगर आपको नहीं है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा वंस यू डाउनलोड चैट जीपीटी। आप इसे डेस्कटॉप या अपने फ़ोन किसी भी डिवाइस में कर सकते हो यूज। बस आप लॉग इन कीजिए और कुछ ऐसा स्टार्ट हो जाएगा इंटरफेस। अब स्क्रिप्टिंग के लिए या कोई भी प्रॉम्प्ट इन जनरल जब हम दे रहे हैं, तो एक अच्छे प्रॉम्प्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है? अगर आप नोट डाउन कर लो तो ये ज़रूर नोट डाउन कर लो। एक अच्छे प्रॉम्प्ट में 4 चीज़ें ज़रूर हम बताते हैं चैट जीपीटी या किसी भी और चैटबॉट को। पहला होता है पर्सोना, ठीक है? पर्सोना या पर्सनैलिटी। जब हम चैट जीपीटी को कह रहे हैं कि कुछ भी हम उससे आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छे स्क्रिप्ट हमें दे, तो पहले हमें बताना होगा कि हम चैट जीपीटी को क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सपोज हमें स्क्रिप्ट चाहिए उसे, तो वी से दैट चैट जीपीटी, यू आर अ वर्ल्ड फेमस स्टोरी टेलर, ठीक है? तो उसको एक पर्सनालिटी दी, पर्सोना दिया, ठीक है? सपोज हमें कोई बहुत अच्छा ऐसे टाइप करवाना है चैट जीपीटी से, कोई इंग्लिश के, सपोज कोई इंग्लिश लिटरेचर का ऐसे टाइप करवाना है। तो वी स्टार्ट बाय सेइंग चैट जीपीटी, यू आर अ वर्ल्ड रिनाउंड इंग्लिश प्रोफेसर, या जो भी उसको पर्सनालिटी देंगे। तो क्या होगा, उसके माइंड में चैट जीपीटी अपने एंड पे ये समझ लेगा कि उसको किस तरह से उसका जवाब ड्राफ्ट करना है, ठीक है? वो नहीं दोगे आप तो शायद उतना अच्छा वो रिस्पॉन्स ना ड्राफ्ट कर पाए, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, पर्सनालिटी असाइन करनी है चैट जीपीटी को, जितना हो सके टेंजिबली। तो हरजोत प्रॉम्प्ट में लिख दो कि यू आर अ वर्ल्ड फेमस स्टोरी टेलर, ठीक है? और इसको भी एक और लाइन हम जो है सब्सटैंशिएट कर देते हैं कि हमें किस तरह की स्टोरी चाहिए। स्टोरी टेलर, कॉमा, हु इज फेमस फॉर ड्राफ्टिंग स्क्रिप्ट्स फॉर इंस्टाग्राम रील्स, फॉर इंस्टाग्राम रील्स इन द डोमेन, ठीक है? और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अपना जो भी डोमेन है आपका, ठीक है? सपोज आप मूवी के वो, ठीक है, फैन हो, इन द डोमेन, और मूवीज में भी सपोज बॉलीवुड मूवीज है तो डोमेन बॉलीवुड मूवीज कर दो, है ना? अगेन पहले आपको सोचना है अपने दिमाग में आपको क्या वीडियो बनानी है, ठीक है? सपोज कोई बॉलीवुड मूवी है जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है? जैसे मुझे शोले मूवी बहुत पसंद है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, प्रॉम्प्ट में जब मैं पर्सनैलिटी असाइन कर रहा हूँ, उस पर्सनैलिटी को असाइन ही मैं इस तरह से कर दूं कि मेरा काम आसान हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बॉलीवुड मूवीज के साथ एक वर्ड डाल देता हूँ, मेकिंग ऑफ बॉलीवुड मूवीज, ठीक है? क्योंकि वो फेमस मूवीज के बारे में तो सबको ही पता होता है, प्लॉट वगैरह के बारे में। लेट मी टॉक अबाउट द मेकिंग ऑफ बॉलीवुड मूवीज। तो इसके दो पहले लिख दो बॉलीवुड मूवी से मेकिंग ऑफ बॉलीवुड मूवी, ठीक है? अब क्या हो रहा है, चैट जीपीटी इतने पर्सनालिटी वाले पोर्शन से पहले ही समझ गया कि मैं क्या, किस तरह का रिस्पॉन्स उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि अब वो ये पर्सनालिटी है, अब वो इसके ऊपर दिमाग लगा के मेरे को जो है रिस्पॉन्स है, ठीक है? तो 4 चीजें, पहली चीज पर्सनालिटी, क्लियर है सबको? क्लियर है तो एक बार थम्स अप भेज दो। परफेक्ट, ठीक है? फिर चारों हेडिंग्स एक बार लिख लो। पर्सनालिटी इज द फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग इज द टास्क, ठीक है? पर्सनालिटी, टास्क, थर्ड इज द कॉन्टेक्स्ट, एंड फोर्थ इज द फॉर्मेट। पर्सनालिटी, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट, ठीक है? पर्सनालिटी हमने दे दिया, अब नेक्स्ट चीज करते हैं टास्क। टास्क हमें क्या देना है? टास्क हम अगले लाइन में इसमें लिखेंगे कि अगली लाइन में हमारा टास्क क्या है कि ड्राफ्ट अ स्क्रिप्ट फॉर अ 60 to 90 seconds Instagram reel, ठीक है? ड्राफ्ट स्क्रिप्ट फॉर 60 to 90 सेकंड Instagram reel ऑन द टॉपिक, ठीक है? अब सपोज मेरी फेवरेट फिल्म्स में शोले है, मुझे आमिर खान की कुछ मूवीज बहुत पसंद है, लगान, थ्री इडियट्स, ठीक है? देन लेट्स टॉक अबाउट थ्री इडियट्स, ठीक है? ड्राफ्ट स्क्रिप्ट फॉर 60 to 90 सेकंड Instagram reel ऑन द टॉपिक, मेक फन fun facts about
थ्री इडियट्स। अबाउट थ्री इडियट्स, ठीक है। सपोज ये मेरी वीडियो का टाइटल हो गया। अगेन जैसे जैसे आप स्क्रिप्टिंग करने बैठोगे वैसे वैसे आपके माइंड में कई सारे आइडियाज आएंगे, तो आप कई सारी स्क्रिप्ट बना सकते हो, और उनमें से जो आपको बेस्ट लग रही हो, जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो, उस पर आप आगे काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, अभी तक समझ आ गया पर्सनालिटी कैसे बनानी है, टास्क कैसे असाइन करना है? इज दैट क्लियर? इफ इट्स क्लियर, लेट्स सी अ थम्स अप। परफेक्ट। वंस यू हैव असाइन द टास्क, तीसरी चीज हो गई कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है कि आप ये काम क्यों करवा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। उस तरह से आपको कॉन्टेक्स्ट भी सेट कर दोगे तो और ज्यादा चैट जीपीटी बेटर रिस्पॉन्स दे पाएगा। ठीक है, आप बताओ कि दी ऑडियंस फॉर दिस रील इज गोइंग टू बी, अब आपकी ऑडियंस क्या है, आप वो डिजाइन ड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मेरी ऑडियंस, क्योंकि मैं बॉलीवुड की मूवीज की मेकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, थ्री इडियट्स के ऊपर अपनी रील बना रहा हूँ, तो मेरी ऑडियंस भी मूवी लविंग पीपल, या पीपल हु वॉच मूवीज, या बॉलीवुड फैंस, उनकी ऑडियंस होगी ज्यादा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑडियंस फॉर माई रील आर मोस्टली पीपल हु वॉच एंड लव बॉलीवुड मूवीज। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और ज्यादा क्लियर हो गया। चैट जीपीटी को जो स्क्रिप्ट बनानी है वो किस तरह से बनानी है वो और ज्यादा क्लियर हो गई। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट अगर आप सपोज विराट कोहली के ऊपर बना रहे होते तो आप क्या लिखते? ऑडियंस क्या है आपके रील के लिए कि क्रिकेट फैंस, राइट। नेचुरली क्रिकेट फैंस अराउंड द वर्ल्ड हो सकते हैं, ठीक है, या क्रिकेट फैंस इन इंडिया हो सकते हैं। वो आपको देखना है आपको किस हिसाब से अपनी रील की ऑडियंस चाहिए। वंस दीज थ्री थिंग्स आर क्लियर, उसके बाद आप सेट करते हो पैरामीटर्स, ये जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेट सेटिंग। ठीक है, सपोज आपको कोई स्पेशल चीजें चाहिए या स्पेशल चीजें नहीं चाहिए। अब जैसे हम यूजुअली इंस्टा रील की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ड्राफ्ट इट इन अ वे दैट इट इज वेरी कैची। ठीक है, तो ड्राफ्ट इट इन अ वे दैट इट इज वेरी कैची, इट retains audience attention and is in a storytelling like format. Okay, retains audience attention and is in a storytelling like format. अब इसमें क्या हो गया, मैंने कुछ पैरामीटर्स के अंदर बांध दिया इसे। ठीक है, सपोज इसी को अगर मैं एक ऐसे ऐसे लिखवा रहा होता है इससे, ठीक है, तो मैं पर्सनालिटी क्या देता, जिस भी फील्ड का वो ऐसे, जैसे अगर मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे लॉ का कुछ ऐसे चाहिए, तो मैं इसे पहले कहूंगा कि यू आर अ वर्ल्ड फेमस लॉ प्रोफेसर। ठीक है, उसके बाद मैं कहता कि ड्राफ्ट मी एन ऐसे ऑन सो एंड सो टॉपिक। फिर मैं ऑडियंस बताता कि ऑडियंस इज स्कॉलर्स ऑफ लॉ एंड लीगल स्टूडेंट्स। एंड फाइनली मैं नीचे लिखता जो पैरामीटर सेट करने हैं, ड्राफ्ट इट इन 300 to 500 words, use academic language, don't use Gen Z slangs। ठीक है, डोंट यूज दीज काइंड ऑफ पंक्चुएशन, या जैसे भी हमारी पैरामीटर्स जो सेट कर रहे हैं हम कि ये नहीं करना है, ये इसी तरह से करना है, वही हमारा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में मैंने ये बता दिया। Now this is a better prompt than simply going in and saying कि give me a script on fun facts about three idiots। फिर वो उतना शायद अच्छे से रिस्पॉन्स ना दे। लेकिन जब मैं ये चार चीजें करूंगा, वो चार चीजें क्या है? पर्सनैलिटी, टास्क, कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर्मेट। जब ये चारों एलिमेंट्स होंगे एक प्रॉम्प्ट में तो वो मच बेटर रिस्पॉन्स फेच करेगा, भले आप चैट जीपीटी यूज करो, जेमिनाई यूज करो, या किसी भी और चैट बॉट पे आप हो। ठीक है, इतना समझ गए सब स्क्रिप्ट के लिए प्रॉम्प्ट कैसे तैयार करना है। अब आपको चूज करना है आपका डोमेन टॉपिक क्या रहेगा, इस हिसाब से उसका प्रॉम्प्ट रेडी करके आप इसको सेंड करो और देखो किस तरह का रिस्पॉन्स फिर चैट जीपीटी देता है। अब उसके जो रिस्पॉन्स चैट जीपीटी ड्राफ्ट करेगा, हो सकता है इनिशियली वो उतना रिफाइंड या अच्छा प्रॉम्प्ट ना हो, जिसे आप देख पा रहे हो ना। इसने ऑलरेडी समझ लिया कि बॉलीवुड फैंस है तो ये हिंदी या इंग्लिश में रील होगी, तो इसने दिए भी स्क्रिप्ट उसी हिसाब से, राइट। थोड़ा जूम करोगे यार? ठीक है, थ्री इडियट्स को आज भी लोग बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट फिल्मों में काउंट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी के पीछे ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने। देखो ये कितनी अच्छी लाइन है एक फर्स्ट लाइन के लिए, राइट। ये लाइन सुनने के बाद मेरा अपने आप ही मन कर जाएगा कि यार मैं आगे की वीडियो देखूं, पूरी वीडियो देखूं। ठीक है, फिर आगे उसने कुछ कुछ पार्ट्स में
थोड़े थोड़े स्क्रिप्ट दिए, और एंड में क्या है, लास्ट वाली स्क्रॉल करना एक बार एंड में, ठीक है, 3 फैक्ट्स के बारे में। वैसे इन 3 फैक्ट्स में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, कमेंट में बताओ। देखो इसने अपने आप कॉल टू एक्शन भी दे दी है, ठीक है। एक स्क्रिप्ट में भी हुक, पॉइंट, कॉल टू एक्शन 3 चीजें होती हैं। हुक होते हैं जो सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग में आ रहा है वीडियो की, जिसे सुन के रिटेंशन, अपने आप ऑडियंस का मन करे पूरी वीडियो देखने का, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कि आपके कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको भी नहीं पता, तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आएगी, यार आगे देखूं, वीडियो को पूरा देख। तो यही आपको डेवलप करना है अपनी कंटेंट, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं उसमें पहला पोर्शन, पहले 5 सेकंड, पहले 5-10 सेकंड, इनिशियली पहले 2 से 5 सेकंड में ही लोग डिसाइड कर लेते हैं पूरी देखनी है, रील नहीं देखनी। तो आपको उतना ग्रैस्प करना पड़ेगा अटेंशन, ठीक है। तो हुक अच्छा होना चाहिए। फिर पॉइंट, जो आप पूरी वीडियो में पॉइंट बना रहे हो या आर्ग्यू कर रहे हो या जो कहना चाह रहे हो आप, वो बात क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा मेस्ड अप है, ठीक है। कम बात होनी चाहिए बट उसको प्रेजेंट अच्छे से किया होना चाहिए। जब तक पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक वो वीडियो का सार जो है वो निकल के नहीं आ पाएगा, है ना। तो पॉइंट क्लियर रखना है। और फाइनली जो थर्ड पार्ट होता है, कॉल टू एक्शन, कि अब जो आपने वीडियो देख ली है तो अब आप उनसे क्या चाह रहे हो ऑडियंस से, ठीक है। आपका कॉल टू एक्शन सिंपली, अगर यूट्यूब वीडियो है तो इट वुड बी की लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर वो इंस्टाग्राम पे तो यूड से कि कमेंट सो एंड सो, फॉलो करो, शेयर करो, जैसा भी आपका उस पर्टिकुलर रील के लिए कॉल टू एक्शन। अभी जैसे यहाँ पे एंडिंग CTA लिखा है ना, CTA का मतलब ये होता है कॉल टू एक्शन, कि यहाँ पे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, ठीक है। ये आपका कॉल टू एक्शन होगा। फिर और अगर आप चाहते हो कि मैं अगली रील में बॉलीवुड की किसी और आइकॉनिक मूवी के हिडन सीक्रेट्स बताऊं, तो फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। कितना सिंपली इन्होंने कॉल टू एक्शन को ऐसे ड्राफ्ट कर दिया। नाउ दिस इज अ गुड स्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें हुक भी है, पॉइंट भी है, कॉल टू एक्शन भी है, ठीक है ना। तो आज हमें स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है। आज हमारा बिग चंक ऑफ टास्क है जिसमें पहला पोर्शन स्क्रिप्टिंग का ये यहाँ खत्म होता है। So is this clear to everyone? Perfect. So once we are done with the scripting thing, now we move on to the next step, which is the shooting part. ठीक है। अब शूटिंग अगेन कुछ चीजें हैं जो शायद आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन मेरे बतानी जरूरी है आपको। व्हेन वी आर शूटिंग क्लिप्स फॉर एडिट और फॉर द स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, उसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। हैरी एक बार स्क्रीन शेयर चाहे वो कर दो। परफेक्ट। एडिटिंग बिगिंस एट द शूटिंग स्टेज इटसेल्फ। आपको तभी, क्योंकि स्क्रिप्ट आपके पास है, अब उसको इतना ज्यादा विजुअली अपीलिंग बना के फाइनली वीडियो आपको बनानी कि वो फिर फाइनली आपका जो इनिशियल गोल था कि एक कंटेंट बनाने का, वो फाइनली ऑपरेशनलाइज हो पाए, रियलाइज हो पाए। तो उसको आप कैसे करोगे? जो शूटिंग कर रहे हो सबसे पहले तो एक्स्ट्रा क्लिप्स जरूर शूट करते रखो, ठीक है। कुछ क्लिप्स होती हैं जिनमें आप खुद को बोलते हुए शूट कर रहे हो, ठीक है। उनको बोलते हैं व्हेन यू आर शूटिंग योरसेल्फ इन द क्लिप्स, ठीक है। कुछ शॉट्स होते हैं जिनमें आप बोल रहे हो, राइट। कुछ शॉट्स होते हैं जिनमें आप बोल नहीं रहे हो, कुछ रैंडम क्लिप्स है लेकिन आपका वॉइस ओवर उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 तरह की क्लिप्स हैं, दोनों ही हम शूट कर रहे होंगे आज, ठीक है। अब शूट जो करनी है चीजें, उनमें कुछ ध्यान रखना। कुछ तरह के शॉट्स होते हैं जो हमने आपके लिए आइडेंटिफाई करके चूज करें, जो हमें रखने हैं अपनी क्लिप्स में, ठीक है। तो इन शॉट्स को सब लिखेंगे, 5 तरह के हैं ये, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लो। पहला है वाइड शॉट, ठीक है। वाइड शॉट, वाइड शॉट जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, जब आप खुद तो दिख रहे हो, जो आप सब्जेक्ट है वीडियो का, जो आप तो दिख ही रहे हो, आपके साथ आपका एनवायरनमेंट भी दिख रहा है पीछे, ठीक है। दिस कैन बी यू सिटिंग ऑन अ स्टडी टेबल विद द एंटायर फील्ड विजिबल। दिस कैन बी यू somewhere outside in the playground or the garden being visible. This can be you on your terrace and the terrace with you in it visible. तो एनवायरमेंट जब सेट हो, ठीक है, तो वाइड शॉट में वो दिखता है। वाइड शॉट कैन बी बोथ लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, इट्स योर कॉल। वी वुड रिकमेंड दैट यू शूट एवरीथिंग इन पोर्ट्रेट, बिकॉज एसेंशियली वो रील के फॉर्मेट में आपको एडिट करना है, राइट। तो शूटिंग का पहला शॉट वाइड शॉट, ठीक है। पहले 5 शॉट के नाम ही लिख लो। दूसरा शॉट होता है मिड शॉट, ठीक है। वाइड, मिड, क्लोजअप, मूवमेंट एंड पीओवी, ठीक है। हैरी एक बार चैट बॉक्स में टाइप भी कर दो इनके लिए, ठीक है। वाइड, मिड, क्लोजअप, मूवमेंट एंड पीओवी।
ठीक है। वाइड शॉट आपको समझ आ गया, जिसमें आप दिख रहे हो लेकिन आपकी सराउंडिंग्स भी उतनी ही दिख रही हैं, ठीक है। यू आर अ पार्ट ऑफ द बिगर सराउंडिंग। तो वो सेट करता है टोन या मूड जो आपकी वीडियो का है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट पोएट्री या फेवरेट बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज हैरी पॉटर के ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो, और उसके ऊपर फिर मैं जब बात करूँ तो उसमें वाइड शॉट में क्या हो सकता है, मी इन फ्रंट ऑफ माई यू नो library, or in front of my bookshelf, or just in front of a couple of books in my hand and choosing Harry Potter out of them, ठीक है। अब वो ब्रॉडर वीडियो में वो एक शॉट जो है वो कितना बेटर एनहांस कर देगा पूरी वीडियो को, राइट। तो वो वाइड शॉट होता है उस मूड को सेट करने के लिए कि मेरी वीडियो दिखा रही है कि मैं कुछ बुक की बात करने जा रहा हूँ, राइट। तो वाइड शॉट समझ गए? इज वाइड शॉट क्लियर टू एवरीवन? एक बार थम्स अप भेजो। परफेक्ट, परफेक्ट। तो वाइड शॉट के बाद आते हैं मिड शॉट। मिड शॉट इज सिमिलर टू वाइड शॉट, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस होता है एनवायरनमेंट से ज्यादा, ठीक है। जैसे यही दो एग्जांपल ले लेते हैं। मी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय बुक शेल्फ वेयर द एंटायर बुक शेल्फ इज इन फोकस विद मी एज द सब्जेक्ट स्टैंडिंग देयर एंड पिकिंग अप। एंड द सेकंड मिड शॉट वुड बी द सेम शॉट जो थोड़ा और पास से लिया गया, जिसमें एक्टिविटी पे फोकस है, यानी मैं जो बुक निकाल रहा हूँ बुक शेल्फ से उस पर फोकस है, ठीक है। दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ मिड शॉट, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखनी है कि एक वाइड शॉट भी आपको लेना है, एक मिड शॉट भी आपको लेना है। सपोज आप विराट कोहली पे वीडियो बना रहे हैं, तो उसका वाइड शॉट हो सकता है कि बच्चा कोई जो है कोई गार्डन में या प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, तो वाइड शॉट है, पूरी सेटिंग हो गई है। उसका मिड शॉट क्या हो सकता है कि आपने एक ऐसे एंगल से वीडियो फिर शूट करी कि वो अपना बैट सेट कर रहा है, घुमा रहा है, उठा रहा है, या कुछ कुछ मतलब एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। तो मिड मिड शॉट समझ गए सब क्या होगा? क्लियर है? परफेक्ट। तो वाइड शॉट, मिड शॉट। थर्ड तरह का शॉट जो है वो है क्लोजअप शॉट, ठीक है। ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। क्लोजअप जब आप लेते हैं किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है अगर आप बोल रहे हो वीडियो में, ठीक है। तो वो हो सकता है क्लोजअप शॉट। क्लोजअप शॉट्स हम तब लेंगे जब हमें कुछ भी खुद बोलना है, खुद दिखना है वीडियो में बोलते हुए, ठीक है। तो हम उन वाले शॉट्स को यहाँ पे क्लोजअप शॉट्स बोल रहे हैं, जब आप खुद वॉइस ओवर दे रहे हैं, जब आप खुद बता रहे हैं कैमरा में देखिए कि भाई जो है मैं आज इस बुक की बात करने जा रहा हूँ, या जो भी है। थ्री इडियट्स तो हम सबने देखी है, लेकिन आज मैं आपको उसके कुछ हिडन सीक्रेट्स बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी हुक वगैरह है उसके लिए हम यूजुअली क्लोजअप शॉट यूज करते हैं। अब क्लोजअप शॉट का जब भी आपने यूज करना है, जब भी आप खुद देखकर कैमरा में बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए कि फोर्थ वॉल ही हमें ब्रेक करनी है। वी हैव टू टॉक टू द ऑडियंस एज इफ देयर इज नो कैमरा इन बिटवीन अस, एज इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, ठीक है। सो जैसे हम वीडियो कॉल में करते हैं ना, जब किसी से वीडियो कॉल करते हैं तो हम ऐसी बात करते हैं जैसे वो हमारे सामने बैठे। तो वैसे ही हमें कैमरा में देख के ऐसे बात करनी है जैसे हम किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली और उतनी ही तरह से पॉजेज लेके। मतलब ऐसे मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए वो प्रोसेस कि हम कुछ रीड आउट कर रहे हैं या पढ़कर बोल रहे हैं स्क्रिप्ट को, ठीक है। वो जितना नेचुरल फील होगा उतना ज्यादा रिसीविंग एंड पे बेटर अच्छा लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आपको और बेटर आएगी, बट एटलीस्ट नाउ यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट टू डू इन अ क्लोजअप शॉट, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो वाइड शॉट, मिड शॉट, क्लोजअप शॉट क्लियर है सबको? परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि एक यूनिफॉर्म लाइटिंग हो, है ना। जब आप क्लोजअप शॉट्स ले रहे हो एटलीस्ट, तब एक थोड़ा साइलेंट एटमोसफियर में जाके आप शूट करो, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस ना हो जहाँ पर उसमें जो आप वीडियो क्लिप शूट कर रहे हो, कोशिश करना कि वो वही बात की बहुत ज्यादा डार्क एरिया में ना हो। जैसे लाइट आपके मुंह पे आ रही हो तो वो बेटर है। तो इन छोटी-मोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कैमरा क्वालिटी कोशिश कीजिएगा घर में जो सबसे अ, अच्छा कैमरा है, अच्छा फ़ोन का कैमरा है, उसे यूज़ करना। आजकल तो फ़ोन के कैमरा काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो आपको उतनी ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट एक चीज़ का आपने अभी रियलाइज़ कर ही लिया होगा कि एडिट तभी अच्छा बन पाता है जब रॉ क्लिप्स अच्छी हों, है ना। अगर आपकी क्लिप्स अच्छी नहीं है, फिर आप जितनी अच्छी एडिटिंग जानते हो, आप उसको बहुत अच्छा एडिट नहीं बना सकते उससे, राइट। और बहुत अच्छी वीडियो तभी बनेगी जब अच्छी स्क्रिप्टिंग भी हो साथ में। तो वो सब चीज़ें आज आपके टास्क में करनी है, ठीक है। तो आज टास्क में कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा आपकी सबमिशंस में कि मेरे पास क्लिप्स नहीं थी या मेरे पास कुछ जो है अच्छा कंटेंट नहीं था। आज आपको सब कुछ खुद से ही बनाना है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि फिर आप अपना 100% देंगे और ये सब चीज़ें अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है। चलो, वाइड, मिड, क्लोज़अप डन। अब 2 चीज़ें बड़ी हैं, मूवमेंट एंड पीओवी। वो देख लेते हैं। मूवमेंट जो शॉट्स होते हैं
वो यूजुअली ट्रांजिशंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्क्रिप्ट में कोई एक बात खत्म की थी, एक फैक्ट खत्म कर रहे हो, दूसरे फैक्ट पे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो वो मूवमेंट के लिए, या कोई लंबी लाइन आ गई है जिसमें आपको कुछ शॉर्ट फिलर डालना है, उसके लिए मूवमेंट शॉर्ट्स यूज होते हैं। मूवमेंट शॉट बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बुक की बात कर रहे हो, ठीक है, हैरी पॉटर की जैसे बात कर रहे हो, तो हैरी पॉटर में आप पन्नों को पलटना, ये भी एक मूवमेंट शॉट दिखा रहे हैं, ठीक है। सपोज आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, और क्रिकेट में आप बात कर रहे हो सपोज कि विराट कोहली अपने घर से जो है इतनी दूर रोज कोचिंग के लिए जाता था क्रिकेट एकेडमी में, तो आप तब शॉट डाल सकते हो एक बच्चा जो स्कूटर पे बैठ के जा रहा है, स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं, वैसे ट्रैवल कर रहा है कोई बस से, है ना। तो वो वाले शॉट्स जो है फिलर शॉट्स बोलते हैं उनको, ये मूवमेंट शॉट, ये हम डालते हैं जब भी हमें कुछ जर्नी कन्वे करनी है, या जब भी रेलेवेंट हो हमारी वीडियो के हिसाब से, ठीक है। तो इज दिस क्लियर, मूवमेंट शॉट्स क्या होते हैं? क्लियर है सबको? परफेक्ट, वेरी गुड। और पांचवी तरह का शॉट है वो पीओवी शॉट। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज आप अपने लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, आप बैठे हो, आपकी वीडियो आ रही है कि आप लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहे हो, वाइड शॉट मिड शॉट आपने ले, फिर उसके बाद आपको पीओवी शॉट लेना। तो पीओवी शॉट होगा जहां से आप देख रहे हो उस चीज को, जैसे आप लैपटॉप पे टाइप कर रहे हो तो आपका व्यू ये होगा, तो आप अपने मुंह के पास रख के कैमरा को इस तरह से शूट करो जैसे कि आपकी आंखों से दिखता है वो शॉट, तो वो पीओवी शॉट होगा, ठीक है। पीओवी शॉट भी बहुत तरह के होते हैं, अगेन इट इज योर कॉल कि आपको कैसे करना है, बट हाँ, पीओवी शॉट भी एक तरीके का शॉट है जो हमें चाहिए आज के एडिट में, ठीक है। तो आई जस्ट मूव ऑन, अगर इफ इट्स क्लियर टू एवरीवन, पीओवी शॉट मूवमेंट शॉट समझ आ गए सबको? परफेक्ट। सो दीज आर द 5 काइंड ऑफ शॉट्स जो हम शूटिंग में यूज करते हैं। आज के टास्क के लिए आप जो भी वीडियो बना रहे हो, उसके लिए आपको पांचों तरह के शॉट्स को अपनी वीडियो में रखना पड़ेगा। वीडियो की लेंथ होगी 60 to 90 सेकेंड्स टोटलिटी में। इज दिस क्लियर? चलो, परफेक्ट, perfect. Now that we have understood the scripting, the shooting, we'll finally move on to the editing now. ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूं आज के टास्क का, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करें कि सबसे पहले तो आप टॉपिक डिसाइड करके स्क्रिप्टिंग कर लो, ठीक है। आइडियली जैसे ही आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, या जैसे ही आपने ये लेक्चर वीडियो खत्म करी लाइव देखनी, साथ के साथ स्क्रिप्टिंग कर लेना, ठीक है। स्क्रिप्टिंग में डोंट डिले इट, बिकॉज एटलीस्ट कुछ 10-15% आपका टास्क आज का हो जाएगा, ठीक है। वंस वो स्क्रिप्ट बन जाए, ठीक है, इफ यू वांट अस टू गो थ्रू इट फर्स्ट, तो हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, ताकि हम उसे फटाफट देख के ग्रीन लाइट दे दें। If you're confident in that script, then you can straight away start with it. You need not get a confirmation from us in that case. वो स्क्रिप्ट के बाद स्क्रिप्ट में होना क्या चाहिए, 3 चीजें मैंने बताई थी स्क्रिप्ट में, ठीक है। किसी को याद है? कोई बताएगा? What are the 3 elements required in a good script? Anyone? Samiksha? Sir, I could tell one. All right, go ahead. Uh, the script should not be very descriptive. It should be storytelling based. Okay, that is a format or a parameter for your script. That's okay. But what is the portion of your script called? There, I told you 3 portions, right? Hook, point, and what was the third one? Anyone? Harry? Call to action. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो गाइस, ये भी लिख लो, क्योंकि एसेंशियली आप जब टास्क कर रहे होगे तो आपको करनी है ये चीजें, राइट। तो हुक, पॉइंट, कॉल टू एक्शन। हुक होते हैं जो स्टार्टिंग में आप इतना इंटरेस्टिंग लाइन बोल दो कि वो फिर इंटरेस्ट ऑडियंस का आए आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर पॉइंट, पॉइंट आपका जो एंटायर वीडियो का पर्पस है बनाने का, आप उसे जो है वीडियो में बताते हो पॉइंट्स को अपने। और फाइनली कॉल टू एक्शन, कि अब आप चाह क्या रहे हो, ठीक है। इफ यू वांट देम टू फॉलो, टू कमेंट, टू सब्सक्राइब, तो वो सब, ठीक है। तो हुक, पॉइंट एंड कॉल टू एक्शन। अब ये स्क्रिप्ट जब आप बनाओगे, तो व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स दैट गो इनटू अ गुड प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो हमने आज सीखी है, वो लिखे किसी ने? यस, कुंवर, कैन यू टेल अस? चलो, समीक्षा, यू गो अहेड।
First of all, to give a good prompt, we should give the generative AI its persona. We have to describe what personality do we want the AI to think about, and then we give it the task. We tell ChatGPT what we want. For example, a script or for a reel for this to this seconds and etc. Next, we move on to context, where we tell about in task we also tell about our topic and our needs and wants to AI. Then for All right. context we tell about our audience, and for format we tell what speciality do we want in our reel, and what parameters do we want in that. Perfect. So it's persona, task, context and format. ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। तो हमें पता लग गया स्क्रिप्ट में क्या डालना है, प्रॉम्प्ट में क्या डालना है। तो जो स्क्रिप्ट आप जनरेट कर लो सबसे पहले, साथ के साथ जब भी ये वीडियो आप खत्म करो, गेट डन विद दिस, ऑलराइट। उसके बाद शूटिंग में जब हम आते हैं, तो शूटिंग में हमने 5 तरह के शॉट्स बताए हैं जो हमें आज की वीडियो में चाहिए। ठीक है, तो ये कौन बताएगा? गुरमुख, वुड यू लाइक टू टेल अस दीस 5 काइंड्स ऑफ शॉट्स? ये अभी हमने डिस्कस कर रहे थे ना, 5 तरह के शॉट्स जो हमें वीडियो में चाहिए। चलो, नो नो प्रॉब्लम। कुंवर, वुड यू लाइक टू टेल अस दिस? कुंवर, आर यू देयर? ऑलराइट, समीक्षा, वुड यू यस लाइक टू सर। गो अहेड? अच्छा, कुंवर आ गए सर। यस, कुंवर बताओ। क्या सर, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, आवाज थोड़ी वो हो रही थी। कुंवर, टेल अस द 5 काइंड ऑफ शॉट्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट जो हमें चाहिए शूटिंग में। हाँ। सर एक्चुअली मेरे को थोड़े बहुत नहीं पता, क्योंकि आवाज नेटवर्क इश्यू चल रहा है, तो आवाज थोड़ी कट रही है। बाकियों को भी दिक्कत आ रही है क्या? No sir. Kashish, can you just confirm once if everything is audible? Right, sir. Everything is clearly audible to me. Perfect, perfect. Chalo, Samiksha, can you please tell us the 5 kind of shots? Yes sir. First we talked about is a wide shot, where we film ourselves and our environment also. Environment is clearly visible, and the subject is also visible. Next, we have the mid shot, where we focus on the activity more rather than the environment. And then is a close up shot, where the focus is on either the subject or the object, which is our main topic. And next we have movement. This shot is generally used when we want a transition from one clip to another, or we want to show uh, some other clip which is different from like other shots. And then we have POV, which is a point of view, which shows our view of what we want the audience to see, or like that. Perfect, perfect. That's the perfect answer, Samiksha. ठीक है, चलो फाइनली लेट अस कंक्लूड टुडेज सेशन ऑन दिस नोट, आई गेस। ठीक है, हमने आपको बेसिक बता दिए हमें क्या चाहिए आपके सबमिशन में। ठीक है, स्क्रिप्टिंग अच्छी होनी चाहिए, शूटिंग कुछ इस तरह से करनी है। एडिटिंग में क्या करोगे आप? यू नो, आइडियली इफ आई वाज गिवन दिस टास्क, मैं कैसे करता इसे? सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट बना के रख लेता। ठीक है, फिर मैं एक वीडियो बनाता क्लोजअप वाली, जिसमें केवल मैं दिख रहा हूँ, जैसे अभी आपको मैं दिख रहा हूँ। ऐसे मैं कैमरा में रिकॉर्ड करता, एक साइलेंट प्लेस पे जाके, एक बढ़िया लाइटिंग जब मेरे मुंह पे आ रही है, उसमें मैं सारी स्क्रिप्ट पढ़ता। ठीक है, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक की वो रखता मैं अपनी बेस क्लिप। ठीक है, उसको मैं अपनी बेस क्लिप बनाता।
उसको मैं लेकर आता कैनवा में, वो पूरी क्लिप अब मेरे पास है। उसके बाद वंस आई हैव शॉट दैट वन क्लिप, देन आई थिंक अबाउट ऑल अदर थिंग्स दैट आई कैन डू। क्योंकि एक बार जब मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए रिकॉर्ड कर लूंगा ना खुद को, तब मेरे को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि कौन से शॉट में आई वांट टू कीप माई सेल्फ, कौन से शॉट्स में आई कैन हैव सम अदर वीडियोज और टेक्स्ट ओवरलेज। once you have that in mind, then you will be in a much better position to see कि यहाँ पे यार वाइड शॉट अच्छा आ सकता है इस चीज का, यहाँ पे पीओवी शॉट अच्छा लगेगा इस चीज का, कोई मूवमेंट शॉट आ सकता है, कोई मिड शॉट आ सकता है। ठीक है, बाकी 4 शॉट्स जो है आप पहले क्लोजअप की पूरी वीडियो बना लो, उसके बाद बाकी 4 शॉट्स को आप अलग अलग तरह से शूट कर लो। ठीक है, जो भी आपको सही लगे। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव मोर रॉ फुटेज, मोर शूटिंग विद यू देन यू माइट रिक्वायर इन दी एडिटिंग। ठीक है, एक चीज के 2-3 शॉट लेकर रख लो, बाद में एडिटिंग में देखना उसमें से बेस्ट कौन सा है। ठीक है, पहले कम मत बनाना, पहले कम बनाओगे तो यू विल बी लिमिटेड टू दैट ओनली, आपको उसी में से फिर करना पड़ेगा। ठीक है, मेक योर ऑप्शंस, पहले ही 2-3 तरह के शॉट्स जो है एक्स्ट्रा शूट करके रख लो। फिर वंस यू सिट डाउन ऑन द कैनवा एडिटिंग, पहले अपनी बेस क्लिप लगाओ। ठीक है, फिर हमने आपको बाकी सब चीजें जे कट, एल कट टूल्स तो सिखाई दिए। ठीक है, उस वीडियो को सबसे पहले तो वॉइस एनहांस कर लेना। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर हमने कल के टास्क में आपको बताया था, लेकिन किसी ने करा नहीं क्योंकि वो कल आपका टास्क में बैकग्राउंड म्यूजिक ही वो ले रहा था प्रीसीडेंस। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यू हैव अंडरस्टूड एंड यू नो हाउ टू डू इट, राइट। सबसे पहले उस क्लिप का वॉइस एनहांस करके वो एनहांस्ड वॉइस यूज करेंगे। उसके बाद उस कैनवा क्लिप में जो आप एडिट कर रहे हो, ओवरलेज लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स की, जो हमने अभी आपको बताए हैं, वाइड शॉट, मिड शॉट, ठीक है, मूवमेंट, पीओवी, ये सब शॉट्स के लगाते हुए फाइनली हम जो एडिट बनाएंगे वो 60 सेकंड का एटलीस्ट होना चाहिए, 90 सेकंड का मैक्सिमम होना चाहिए, और उसमें आपकी स्क्रिप्ट जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स फॉर टुडेस टास्क? किसी का कोई डाउट? परफेक्ट। हैरी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू डू? Everything is done for today, I guess. Let me double check just in case. यस, मीनवाइल समीक्षा बताओ। सर ज़रूरी नहीं है ना कि हम सारे 5 शॉट्स ही यूज़ करें, लाइक 5 में से कोई 3 या मतलब ऐसे चलेंगे ना? या फिर सारे यूज़ करना है हमको? देखो, 60 से 90 सेकंड है आपके पास, राइट। अगर आप 2 या 3 तरह की करोगे तो फिर वो उतना ज्यादा रिटेंशन नहीं रह पाया। दैट्स वाई हमने अभी तो बहुत सारे थे, हमने हरजूत एंड मी वी सैट डाउन एंड चोज द बेस्ट 5 वंस जो आपके लिए भी इजी रहेंगे समझना और करना। तो हमने भी ज्यादा टेक्निकल नहीं रखी चीजें, बट हाँ, ये 5 तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपकी 60 या 90 सेकंड जितना भी वीडियो बने, एटलीस्ट 1 शॉट फ्रॉम ईच 5 कैटेगरी शुड बी देयर। ठीक है, परफेक्ट, Everything has been concluded for today. परफेक्ट। चलो, लेट Thank अस you. कंक्लूड द सेशन नाउ। मुझे पता है आज थोड़ा टफ टास्क है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट यू नो यू विल ट्राई गिव योर 100% टू इट। ठीक है, आज के टास्क के बाद आपको खुद भी फील होगा दैट यू लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग व्हाइल यू नो यू वर डूइंग इट। अभी इससे पहले हम काफी टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे डेली, अब हम कंटेंट क्रिएशन पे प्रॉपरली जंप कर गए हैं। ठीक है, हम ये मान लिया है हमने कि आपको टूल्स आ गए हैं, और अब हम नेक्स्ट स्टेज पर आ गए हैं, कंटेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से बनाएंगे। टाइमली सबमिशंस चाहिए मुझे आज। यस्टरडे यू नो आई सॉ कि केवल 4 लोगों ने सबमिट करा टाइमली। गुरमुख, आपकी काफी सारी सबमिशंस अभी तक पेंडिंग है, राइट। प्लीज आज उसको सारी को कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, अगर कोई सबमिशन नहीं कर पा रहे किसी श्योर सर। कारण से, तो प्लीज हमें एक बार इन्फॉर्म कर दे पर्सनल चैट में। ठीक है, परफेक्ट। चलो, जो लोग इसे रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं, प्लीज आज का टाइम से सबमिट कीजिएगा। चलो, with that being said, let us end this meeting here. Thank you so much for joining. Looking forward to seeing your tasks.